Very warm good evening to one and all. Welcome back to the today's session. Today we have our guest speaker, Dr. Kushal Bharat sir, MD Homeopath, and HOD and Professor from Department of Pathology from SKRP Gujarati Homeopathy Medical College and Hospital and Research Center, Indore. Today's topic will be empowering children homeopathy for emotional balance and behavior harmony. We welcome you, sir. We welcome you all the participants. The session is all yours, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Shall I continue? Yes. I am audible to all of you. Good evening, sir. Yes, sir. You are Okay. audible. Okay. So, very good evening to one and all. Thank you, Asha team, All India Homeopathic Students and Youth Association, for giving me an opportunity on this platform to discuss some topic like empowering children, homeopathy for emotional balance and behavioral harmony. So I chose this topic because in today's era, apart from adults and other fraternity, children are one of the individual which are under the very under pressure due to increased stress, due to this competitive world, or due to any kind of emotional struggle, or due to any kind of digital exposure. So this kind of thing led to get them in the anxiety or a kind of a pressure, which we can see them in a expressions, some kind of expressions which are unique in each children. Either they narrate or either they give responses in the form of objective symptoms. So, seeing this child in our case taking, we have to observe each and every minute symptoms, his activities, his each and every word he spoke in our case taking. So proceeding forward, we have to find the uniqueness of the childhood expression. Most probably it is very common in childhood cases. In many of the homeopaths we see there are common varieties of medicines prescribed. Can anybody name such of them which are commonly prescribed medicines in pediatric age group? You can write in the chat box. Can anybody tell me which are commonly prescribed medicines in pediatric age group? So in pediatric age group, we have to find that unique expressions or unique behavior. That is the nonsense in behavioral and emotional pathology, which cannot be understood or treated
in the same way as the adult behave. But we have to find that objective symptoms, how the child react or give response to the particular situations. Because child inner expressions are very pure and very subtle. But expressions of adult are processed and managed. So this uniqueness of the childhood expression is very important for our case taking. And this only we don't take in our case taking or we ignore it. So coming forward, first of all, we have to understand the emotions. What are the emotions? Emotions are the complex psychological and physiological responses to internal or external stimuli that involves feelings, thoughts, and behavior. They are the natural reactions that help children to understand and express what they experiencing and play a vital role in their personality development, decision making, and social relationship. So seeing this, emotions are very much important in pediatric age group because they can't be, ऐसा लगता है कि इमोशंस जो होते हैं जो कभी भी किसी के दबाव में नहीं आते हैं और जो बच्चों में इमोशंस रहते हैं वो एकदम प्योर रहते हैं, न वो मिसमैच्ड रहते हैं, न वो जम्बल्ड रहते हैं और उनको किसी की परवाह नहीं रहती. They are very much natural. Like seeing ourselves, I am reacting in a sophisticated manner. If any children would be there in front of you, it is like mismanaged and talking blah blah blah, कुछ भी बोलना, ये सब चीजें रहती हैं. So we have to see this nature and we have to observe this nature. In children's, emotions are often pure and intense, as they are still learning to regulate and express them appropriately. So seeing this, उनके इमोशंस जो रहते हैं because they are in the developing phase, they are just learning themselves how to react, how to respond in particular situation in front of any kind of personality, how we have to behave. They don't know, they just go in their pace. So these are the basic observations we have to see in our case taking or in our home also. Emotions are feeling that, that show how a child react into situation such as being happy, sad, scared or angry. तो ये सब चीजें हमें देखना बहुत जरूरी होती है कि जब बच्चा बहुत ज्यादा खुश रहता है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है और खुशी में वो क्या क्या करता है, और जब वो दुखी के फेज में होता है, दुख के फेज में होता है, दुख में वह किस बात पर उसे सैडनेस आती है, किस बात पर उसे गुस्सा आता है,
और किस बात पर वो सबसे ज़्यादा घबरा जाता है या डर जाता है। तो ये सारी सिचुएशंस हमें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है हमारी केस टेकिंग में। जब हम कुछ केसेस देखेंगे, उन केसेस में जब हम पूछते हैं तो व्हाट इज़ द सिचुएशन बिहाइंड दैट पर्टिकुलर फेज़, तो वहाँ पर बच्चा बोलता है, मुझे डर लगता है इस सिचुएशन से, मुझे गुस्सा आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनके साथ में खेलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये व्यक्ति बहुत पसंद है, ये फ्रेंड सर्कल बहुत पसंद है। दिस आर द इमोशंस टू बी इंक्लूडेड इन अवर केस टेकिंग, और इन अवर this type of medicine should have the feeling in our prescriptions. So, is it okay to all? Yes, sir. Okay. So, moving forward, we are going to see some pictures, or we will differentiate the expressions of adult and children's. First of all, क्योंकि एडल्ट के एक्सप्रेशंस तो समझना बहुत आसान है, मगर बच्चों के एक्सप्रेशंस में हमें थोड़ा टाइम लगता है, और उसे हमें मेडिसिन्स में उतारना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा-सा उनके एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जैसे कि अगर चाइल्ड में हमें एक्सप्रेशन दिखता है, तो वहीं एडल्ट्स में हमें सेपरेशन देखने को मिलता है। जैसे ये एक बच्चा दिख रहा है, बहुत ही खिला हुआ, हँसता हुआ, खेलता हुआ, कुछ भी करना है, जो हो रहा है देखेंगे, उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं। और यहाँ पर जो व्यक्ति है, वो भी चाहता है बहुत कुछ करना, मगर he have to suppress his emotions, his feelings, and he have to work according to his boss. सो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, और दोनों में ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। सो कमिंग फॉरवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन चाइल्ड द एक्सप्रेशंस आर प्योर, spontaneous, and raw, unfiltered. They are the direct reflections of their inner feeling. कुछ नहीं समझ में आता, सब कुछ। आप घर पे अपने बच्चों को देखते होंगे, या आस-पास में हमारे बच्चों को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कुछ नहीं सोचते हैं। They just go on and go on. While when we go to a particular friend's home, or any kind of any person's home, how do we behave? How do we express? They are totally filtered. We have to sit properly. We have to sit and behave properly. They are always shaped by the societal norms. एक सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं कि हमें ऐसे बैठना है, ऐसे बात करना है। हमारी जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, वो हम शेयर करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखती हैं उसमें, मगर बच्चों में ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से परे रहता है। तो दिस आर द प्योर। तो ऐसे कई एक्सप्रेशंस हम आगे कुछ पिक्चर्स के माध्यम से हम समझेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द स्टाइल ऑफ देयर एक्सप्रेशंस? दे आर ओपन एंड विजिबल, जैसे क्राइंग, लाफिंग, शाउटिंग, एनी काइंड ऑफ टेंट्रम्स। जैसे हम टेंट्रम्स कैमोमिला, सीना, इन सब रेमेडीज में हम देखते हैं। वी कैन सी द एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी मूवमेंट्स हम देखने को मिलते हैं। बच्चा किसी भी बात को लेकर रोना, चीखना, जैसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और वहीं पर जो एडल्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, दे आर कंसील्ड, दे आर मार्क्स। जैसे कंसील्ड हम कैसे समझ सकते हैं?
जैसे किसी भी दीवार के पीछे किसी भी चीज को छुपा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक लाइन को, ठीक है, वाटर लाइन को, दिस ऑल आर कंसील्ड एंड मार्क्ड। इस दीवार के पीछे किस तरह की रेती, बालू रेती, ईंट है लगी हुई है, ये हमें नहीं पता है। सो एडल्ट इमोशंस आर टोटली हिडन। उसकी हंसी में भी कुछ छुपा हुआ रहता है, उसकी उसके गुमसुम रहने पर भी कुछ बातें छुपी हुई रहती है। मगर आपको, जो भी छोटा बच्चा रहेगा, वो हर बात आपको बेबाक तरीके से बोल देगा, वो कुछ नहीं छुपाता है, वो पोल खोलू होता है। जैसे कहीं पर कुछ हो रहा है तो वो बता देगा, या हमने कुछ करा है तो वो किसी और को भी बता देगा कि मेरे पापा यहाँ गए थे, उन्होंने ये बात करी थी, उन्होंने ये करा, वो करा। तो बच्चों में दिस ऑल थिंग्स आर ओपन एंड विजिबल। सो ये भी हम एक रूब्रिक में देख सकते हैं। जिस क्या रूब्रिक हो सकता है इसमें? एनीवन? आप बोल सकते हैं। The rubric would be light desire for, okay. Coming to the next, what would be the awareness of emotions? वहां पर ऐसा होता है कि वो they feel first and act later। और जो एडल्ट्स होते हैं, हर सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लोग क्या सोचेंगे। दे जज ईच एंड एवरी सिचुएशंस एंड देन दे रिएक्ट। और वहीं बच्चा क्या करता है, ही जस्ट गो ऑन। जबकि बच्चों के एक्सप्रेशंस में कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसे दोस्तों से बात करना है, खेलना है, तोड़ना है, फोड़ना है, रोना है, कुछ भी करना है, कोई कंट्रोल होता ही नहीं है। जबकि एडल्ट्स में, हमारे घर की व्यवस्थाओं में आप देख लीजिए, देयर इज हाई कंट्रोल और सप्रेशंस। इमोशंस आर हेल्ड बैक ड्यू टू fear of rejection, shame, or societal pressure. And reasons behind the behavior in child is immediate need, नहीं मुझे ये चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। Desires and discomfort, hunger, fear, and attention, these are all seen in the child. But in adults, past experiences, social conditioning, future consequences, इन सब चीज़ों के पीछे वो अपना बिहेवियर रखता है। Now, what would be the response to the fear or anger? In child, we see crying, clinging, hitting, or any kind of screaming, डर जाना, ठीक है। बट वही एडल्ट में हमें किस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं? देयर वुड बी साइलेंट एंगर, ग्रीफ, पैसिव एग्रेशंस। इतना गुस्सा आता है कि बस एक झापड़ मार दो उसको। मगर हम मार सकते हैं क्या? हम किसी को एब्यूजिव वर्ड्स बोल सकते हैं क्या? नहीं। बच्चा बस बोल देता है, वो हिट कर देता है, मार के आ जाता है। हम कई मूवीज में देखते हैं, दो बच्चों के बीच में लड़ाई ऐसी होती है, और हेल्थ इम्पैक्ट तो हम देखते ही हैं। रिलीज ऑफ इमोशंस, प्रिवेंटिंग लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल बिल्डअप, ठीक है। वैसे ही इन एडल्ट्स इट लीड्स टू द एंजाइटी, depression, or any kind of physical ailments like hypertension, ulcers. Now, what would be the communication styles? It would be the direct and honest. It says exactly what they feels. And और adults में कैसे रहेगा?
इट वुड बी इनडायरेक्ट एंड कॉशियस, हर कदम फूक फूक के रखता है। और इट वुड बी अ डिप्लोमेटिक, पोलाइटनेस, कि किसी के सामने हमें कैसा बिहेव करना है, दोस्तों के साथ कैसा रहेगा। एंड इवन साइलेंस टू हाइड ट्रू फीलिंग्स, जहाँ पर हमें चुप रहना है तो हमें चुप रहेंगे, हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। तो ये सारी फीलिंग्स हमें हमारी केस टेकिंग में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो वी विल सी सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। So we have to unearth the core. We have to see and observe how child behave in our consulting chamber or in the house. वो बच्चा क्या करता है, आपके स्टेथोस्कोप को उठा के टंगा लेगा, या फिर कोई चीज खोलना बंद करना, गिरा देना, बिखेर देना। आपके क्लिनिक पर आएगा तो 5 मिनट में आप ऐसा हैरान परेशान हो जाओगे कि ऐ चुप हो जा, बैठ जाओ एक तरफ, और आई विल प्रिक अ निडल। हम बस यही बोलते हैं कि डॉक्टर के पास आए तो एक निडल लगा दें, तो वो बच्चा चुपचाप होकर बैठ जाता है। दिस थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये किस में होती है? दिस वी हैव टू सी। चाइल्ड फ्रिक्वेंटली ब्रेक्स द टॉयज, थ्रोज द थिंग्स, और वह नुकसान पहुंचाएगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, या कोई वस्तु हो। हर चीज में आप देखेंगे सब चीज मिसमैनेज्ड रहेगी। तो इस चीज से भी आप समझ पाएंगे कि ऐसा बच्चा कौन से मेडिसिन में जाता है। कैन यू टेल मी? यस, it may be belladonna, good, or maybe tarantula or stramonium और ट्यूबरकुलाइनम। तो ये सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। ट्यूबरकुलिनम बच्चा तो इतना शैतान होता है कि उसकी माँ बोलती है, सर मैं इतनी हैरान हो गई, ये ऐसा लगता है कि कब ये थोड़ी देर के लिए सोता है तो मेरी जान में जान आती है, अब मैं शांति से बैठ पाती हूँ। नहीं तो दिन भर इसके पीछे घूमते रहती हूँ, कहीं इसको लग नहीं जाए, कहीं ये अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा ले, कहीं ये टकरा नहीं जाए, कहीं इस पे कहीं कुछ हो ना जाए। तो इन सब चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है इन अवर केस टेकिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट डू वी सी इन दिस पिक्चर? तो इस पर्टिकुलर पिक्चर से या पेशेंट के नरेशन से हमें समझ में आता है कि सर ये दिन भर खेलता रहता है, इसको बस ब्लॉक्स चाहिए, कुछ चीज तोड़ना मरोड़ना, और बस कार को पाने पिंचेस लेकर या कहीं कुछ लेकर वो खोलता है फिर जोड़ता है, ऐसी बिल्डिंगें बनाता है। तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट्स? इवन जब बच्चा किसी भी चीज को जमाता है, बिल्डिंग करता है, बिल्ड करता है, वो ब्लॉक से खेलता है, ही जस्ट गो ऑन अरेंजिंग द टॉयज, उसको सिस्टमेटिक तरीके से रखेगा, उसको हेल्प करेगा किसी भी व्यक्ति को, नहीं आप ऐसा करिए वैसा करिए। तो ये सब चीज़ें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस टाइप के पेशेंट्स में हमें कोई ना कोई मिनरल ग्रुप ऑफ रेमेडीज चाहिए, जैसे कि नेट्रम्यूर, कैलक्रिया कार्ब,
साइलीशिया, बराइटा कार्व, तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन, क्रिएशन और any kind of harmony is there. Okay, coming to the next, we have to move forward as early as possible. Now this is feeling of isolation within his friends. ऐसे कई बच्चे आपने देखे होंगे जो जाते तो हैं प्लेग्राउंड में मगर चुपचाप से अकेले बैठे रहते हैं, खेलते नहीं हैं सबके साथ में, सब खेल रहे हैं और वो अकेला गुमसुम सा बैठा हुआ है। मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं है, मेरे साथ कोई बैठता ही नहीं है, मैं क्या करूं, किसके साथ खेलूं? तो ये सब क्या है? दिस इज सम काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ रिजेक्शन और आइसोलेशन, और देयर इज फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी कि अगर मैं खेलूंगा और अगर मैं फेल हो गया तो इससे अच्छा मैं एक तरफ वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, सबके साथ घुलता मिलता ही नहीं है। तो ऐसे कई बच्चे होंगे जैसे कि कार्सिनोसिन, मैग्नीशियम म्यूरेटिकम और एनाट्रम्यूर। तो इन सभी बच्चों में दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट और रिजेक्टेड। तो ये आप क्लियरली ऐसे कई बच्चों में देखेंगे। वन मोर पिक्चर आई एम गोइंग टू सी, दैट इज कुछ बच्चे ऐसे कॉमनली आपको देखेंगे बस दिन भर प्लेइंग ओनली विथ कार्स एंड लव इट, बस उनको कार ही पसंद है। आप जब सिंथेसिस रिपर्टरी में देखेंगे उसमें लव फॉर कार्स एक ऐसा स्पेशल रुब्रिक दिया गया है, तो वहां पर आप देखेंगे तो बच्चे ऐसे कारों से खेलते रहते हैं, घूमना फिरना पसंद है इधर से उधर, वो दिन भर बैठते ही नहीं है एक जगह पर। वो बैठ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो बच्चा घूमता ही रहता है। ही कांट इवन सिट इन ओवर अ मिनट। जब वो पढ़ाई करते हैं ना, जब बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, तो ऐसे बच्चे कौन होते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बच्चे क्या होता है, उनमें कंट्रोल, स्पीड, एस्केप, ये उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। दिस वी हैव टू सी। ठीक है, सो seeing this kind of theme, children who love cars, children who feels isolation, and child who is very much crazy, and child who is very sober in his deeds, and child who is benevolent, or child who is very shy and timid, who doesn't show any kind of reactions। तो ऐसे बच्चों में ये नरेटिव पेशेंट नरेट करता है कि सर ये दिन भर खेलते रहता है, बोलता ही नहीं है। हम पूछते हैं और इसकी कुछ हैबिट्स बताइए। हैबिट्स of the particular child is very important in our case taking, मगर in pediatric case taking we just ignore this simple things. Moving forward, I will start with one small case. So a case of 14 years old boy, he have recurrent mouth ulcers for 6 months, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं उसके अल्सर्स। उसको he can't even eat spicy food, उसको बहुत जलन होती है और वह न खा पाता है और उसको दर्द बहुत ज़्यादा हो। तो जब वो खा नहीं पाएगा उसको वीकनेस एंड, और उस दर्द के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाता। He don't even concentrate in his studies due to pain। तो हमने और पूछा कि क्या लगता है
ये सब चीजें बच्चा बोलता कि सर 4 साल का बच्चा मेरी पढ़ाई बहुत खराब हो रही है, इस दर्द के कारण बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर, जबकि उसके पेरेंट्स ने कहा है कि बच्चा इतना शार्प है, क्लास का टॉपर है और हर चीज वो परफेक्टली रखता है, इसकी क्लास वर्क, इसकी स्टडीज इतनी परफेक्ट रहती है कि ये 6 महीने से ये सब स्थिति चल रही है, तो इसका परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है। और क्या होता है, बहुत जल्दी थकावट आ जाती है इसके कारण, पढ़ते पढ़ते तो थक थक ही जाएगा। और क्या अच्छा लगता है, बस सर गाने सुनता हूँ या म्यूजिक, डांसिंग आई लव, एंड देयर इज desires for chocolate, extreme craving for the chocolates. So what are the observations, can anybody tell me? I gave him the medicine. Yes. अब आप 4 चीजों से समझ गए होंगे कि the child who is topper, perfect, and who are sensitive to criticisms and desires for chocolate, only medicine is the carcinosin. Okay, and he was very perfectly all right within 2 weeks, and his mouth ulcers are perfect. So the medicine I gave him was the carcinosin. Now we will see this medicine in detail. So carcinosin, it is one of the bonsai child. एक ऐसा प्लांट होता है जो कि हम हमारे क्लिनिक पर, ऑफिस में, घर में हम उसे उगाते हैं एक प्लेट में। वैसे तो उसको हम बाहर भी उगा सकते हैं, मिट्टी में, जमीन पर, मगर उसको हम एक प्लेट में उगाते हैं तो जिससे क्या रहता है कि वो उतने ही पेरीफेरी में उसको ग्रो होना है। सो carcinosin is a sensitive and responsible child. It is a meditative art form, that means जो कि एकदम परफेक्ट होता है, ओबीडियंट होता है एंड डिसिप्लिन्ड होता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ऐसा बच्चा किसको पसंद नहीं होगा। आप फर्स्ट फिगर में एक देख सकते हैं, ओबीडियंट चाइल्ड, इन सेकंड फिगर डिसिप्लिन्ड एंड fostering patience, who can control themselves, and they have the self awareness and discipline in their care. खुद ही अपना ध्यान रख लेते हैं, खुद ही उनको पता है कि मुझे इस समय पर होमवर्क कंप्लीट करना है, इस समय पर खेलने जाना है, हर चीज ऑन टाइम, परफेक्शनिस्ट, बिकॉज देयर इज टू मच प्रेशर ऑफ पेरेंट्स व्हाइल सिंबलाइजिंग। ये सब क्या सिंबल बताता है, लॉन्गिटिविटी, क्षमता है इसमें, इतनी क्षमता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, अपने कंट्रोल में रखते हुए वो पढ़ाई करता है।
जैसा माँ बाप बोलता है वैसा रहने की कोशिश करता है कार्सिनो बच्चा, बिकॉज दे ग्रीव अप अंडर स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग पेरेंट्स। वही मैंने उस समय उस बच्चे को पूछा, पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा? मम्मी पापा डांटेंगे, मेरी मार्किंग खत्म हो जाएगी, मैं जो क्लास का एक टॉपर था वो मैं क्लास से मेरी रैंकिंग कम होती जाएगी। मगर हमेशा उन पेरेंट्स का एक प्रेशर रहता है, आई हैव टू बी टॉप इन माय स्टडीज, स्पोर्ट्स एंड बिहेवियर। दे मैच्योर टू अर्ली लाइक अ बोनसाई चाइल्ड, लूजिंग देयर नेचुरल इंडिविजुअलिटी। क्योंकि बचपन में ही उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड सप्रेशन। उनके जो आप देखेंगे बुक्स कैसी अरेंज रहती है, आप ये देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में। परफेक्शनिस्ट, डिसिप्लिन्ड एंड वेरी मच सेंसिटिव, डीप नीड फॉर लव एंड अप्रूवल, दे हाइड इमोशंस, नेवर एक्सप्रेसेस एंगर ओपनली। जब गुस्सा भी आता है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, मुझे ये करना है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो कार्सिनोसिन बच्चे आप देख पाएंगे कि देयर आर मैनी टाइप ऑफ दिस चिल्ड्रन इन अवर सोसाइटी। क्योंकि दोनों के बच्चों के पेरेंट्स, मदर एंड फादर, बोथ आर प्रोफेशनल, बोथ आर इन वर्किंग, और बच्चे के ऊपर अटूट प्रेशर रहता है कि नहीं तुम्हें ये इतना ही पढ़ना है, तुम्हें हॉस्टल जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, इतना पढ़ना ही पड़ेगा, इतना खाना ही पड़ेगा। ये सब क्या है? तो वह हमेशा अपने आप को सप्रेस करता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस कार्सिनोसिन थ्रू Cancer P soul, that is cleanliness and fastidiousness. A stands for artistic and affectionate. N stands for neat and obedient. C stands for criticism, sensitivity. जो कार्सिनोसिन का बच्चा होगा that is truly sensitive to reprimands, कि कोई मुझे क्या बोल तो दे कि ये तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग में भी एक नफासत आपको दिखेगी। E stands for early responsibility and R stands for responsible and dutiful. P, that is perfectionist and performer. S stands for sleeplessness and blue sclera. O stands for overly sympathetic and U stands for unexpressed emotions. And L stands for love for nature and rhythm. So I think that is enough for the carcinosin. Are you with me? I shall continue for the next. Sure, sir. Sure. Okay. So moving to the next, another case number 2, it is mm, this is the case number 2. A patient of 16 years old who have the chronic constipation since 1 year. Habitual constipation, we can say it. And he have to strain a hard and stool passes only after much effort. बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा. And he feels plugged sensations in rectum as if stool is stuck down. फिर और पूछा तो बहुत सारी चीजें बाद में आई. एक तो बच्चा बोल ही नहीं रहा था. ये सब
उसके पेरेंट्स बोल रहे थे, मगर ये जो प्लग्ड सेंसेशन है उस बच्चे ने नरेट करा। जैसे ही मैं पूछने जाता हूँ कि और क्या होता बेटा, वो मम्मी पापा की तरफ देखता है। जैसे कॉन्स्टिपेशन उसे नहीं, मम्मी पापा को है। पूछता हूँ तो फिर मम्मी पापा देखता है। सो यस, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या पता मैं कुछ गलत बता दूं, डॉक्टर कुछ और समझ ले, या मम्मी पापा कुछ और बोल दे। He is confused, very irritable as his parents, and very much stressed and overthinked during his exams. जब वो खाना खाता है तो जब उसको ठीक लगता है कि हाँ अब ठीक लग रहा है, इस टाइप के बच्चे कई आते होंगे आपके पास में। एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक जनरल सा सिम्टम है, मगर मेंटल सिम्टम्स ही प्रोमिनेंट होते हैं बच्चों में। जब ऐसा कोई बच्चा आपको दिखे तो उस समय पर और भी बहुत सारी चीजें थी उस दौरान पर, कि जब बच्चा बार बार उस पेरेंट्स को देखता था, तो मैंने एक बार क्या करा कि पेरेंट्स को बाहर चैम्बर से बाहर कर दिया। फिर मैंने पूछा, बेटा क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है? बोले, सर मम्मी पापा दोनों बहुत डांटते हैं मेरे को, इतना चिल्लाते हैं, इतना बोलते हैं। मतलब फर्स्ट 5 मिनट्स में तो वो बच्चा कुछ बोलता ही नहीं है। जब हम थोड़ा सा और धीरे 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 जब उससे और रिवील करवाना चाहते हैं तो वो फिर बोलता है। पढ़ाई नहीं करता हूँ सर तो मुझे बहुत डांटते हैं, डांट पड़ती है। कुछ करूँ तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत कर दूंगा, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ मम्मी पापा से, कोई ऐसी बात होती है। तो इतनी सी वर्जन्स में जब मैंने ये सब देखा और मैंने मेडिसिन दी, जिसका डिस्क्रिप्शन अब बताने वाला हूँ, दैट इज एनाकार्डियम। सो एनाकार्डियम रिप्रेजेंट्स टू द चाइल्ड एब्यूज सिचुएशन। उस बच्चे को इतना कठोर पेरेंट्स मिलते हैं जीवन में, जितने कठोर पेरेंट्स किसी के नहीं होंगे वो एनाकार्डियम के पेरेंट्स हो सकते हैं। जैसे आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं, कि हमको देखते से दया आ जाए कि यार मत मारो बच्चे को। ओवर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, दे इम्पोज देयर डिजायर्स ऑन द चाइल्ड। नहीं, तुझे ये रोटी नहीं पसंद है, तुझे फिर भी खाना पड़ेगी। हम कैसे हो सकते हैं ऐसे, ऐसे पेरेंट्स कैसे हो सकते हैं? दे इम्पोज देयर हैबिट्स ऑन दिस नेचुरल चाइल्ड। तो वो बच्चा एकदम भोंदू जैसा हो जाता है, वो डिसीजन ले ही नहीं पाता है कि मैं करूं कि नहीं करूं, पढ़ाई करूं कि नहीं। मैं अगर एक रोटी ज़्यादा खा लूँगा या उसको सॉस के साथ खा लूँगा तो वो क्या होता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता है। तो इसलिए वो छोटी सी चीज़, चाहे वो कपड़े पहनना हो या कुछ खाना पीना हो, हर चीज़ वो पेरेंट्स से पूछता है। वो बच्चा आपको कुछ बोलने से रहेगा, हमेशा मम्मा जो चेहरा रहेगा। If expectation of parent is not met, this we have to see in the anacardium child. Now, what is the opposite response of anacardium? That is, ऐसे बच्चे बहुत ही ओबीडियंट एंजेलिक होते हैं,
बहुत ही सिंसियर, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि जैसे भगवान का दूत हो। और ही ट्राइज टू बी एक्सेल इन स्टडीज एंड बिहेवियर, क्योंकि पता है कि अगर मैं पढ़ाई अच्छी नहीं करूँगा तो मुझे फिर पनिशमेंट मिलेगी, मुझे फिर डांट पड़ेगी। जैसे आप, वो एक मूवी थी अनिल कपूर की, किशन कन्हैया, सभी ने देखी होगी, डबल रोल रहता है उसमें। जो किशन रहता है, एक्सट्रीम पेरेंटल कंट्रोल ऑफ दैट अमरीश पुरी एंड दिस हिज बुआ, खूब मारते हैं, नहीं तुझे ये खाना पड़ेगा, नहीं तूने ये बोला कैसे, ये कैसे हुआ। तो ये सब चीजें क्या है, एक एनाकार्डियम पर्सनालिटी की होती है। ही डेवलप्स नर्वसनेस, कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तीनों चीजें, नर्वसनेस, कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपको देखने को मिल सकती है। दिस इज द ड्यूअल रोल ऑफ द एनाकार्डियम। एक्सट्रीम पेरेंटल कंट्रोल जहां पर दिखता है, जस्ट गिव एनाकार्डियम 200 single dose or two, we can see a response in a day or two, और उस बच्चे का कॉन्स्टिपेशन क्लियर आउट होते। और धीरे धीरे बच्चा अब माँ बाप के सामने बोलने लगता है, ये आपको एक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। फिर कॉन्फ्लिक्ट विद एन एंजल और डेविल, तो ये एक मेन थीम होती है उसकी, एनाकार्डियम की। वन साइड इज गुड एंड ओबीडियंट एंड अदर साइड इज वेरी क्रूअल एंड डेफिएंट साइड, जो कि एक रेबेलियन बच्चा होता है। जिसने मुझे ये करा होता है ना, तो वो माँ बाप के खिलाफ हो जाता है। तो सबसे बड़ा माँ बाप का दुश्मन कौन होता है, एनाकार्डियम चाइल्ड। और जिन बच्चों के और पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होता है, तो वो बच्चा हमेशा एनाकार्डियम हो सकता है, क्योंकि बचपन में वह तो बहुत अच्छा रहता है, मगर उसके पेरेंट्स इतने खराब होते हैं, तो बच्चा जब एडल्ट फेज में आ जाता है, ही बिकम टोटली अपोजिट, हार्ड हार्टेड, malicious and violent and abusive, stubborn and antisocial with their parents। और उसको इतनी घृणा हो जाती है, डिस्गस्ट फीलिंग हो जाती है उनके पेरेंट्स से कि नहीं, मुझे रहना ही नहीं उनके साथ, वो अलग हो जाता है। तो फिर ये सोचने में आता है, यार ये बचपन में तो कितना अच्छा था, कैसा हो गया मेरा बेटा, मेरा बच्चा कैसा हो गया है, मैंने इतना लाडों से पाला था, ऐसा रखा था, और ये कैसा हो गया है। सो मगर वो पेरेंट्स ये नहीं समझते थे कि मैंने बचपन में उसको कैसा रखा था, तो ये भी समझना जरूरी है। Now, core conflict of anacardium is two wills constantly battling, angel versus devil. This leads to the mental confusion and indecisiveness. करूँ कि नहीं करूँ? He is always in this seesaw pattern. हाँ या ना, एंजल एंड डेविल। ठीक है, तो ये डिसीजन की अवस्था हमेशा एनाकार्डियम में रहेगी। और जिस समय पर वो एनाकार्डियम दवा मिल जाती है, तो उसे वो एक डिसीजन मेकिंग पावर होने लग जाती है। नेक्स्ट इज द मेंटल स्टेट, इर्रेजोल्यूट, लैक्स कॉन्फिडेंस, इजीली कंफ्यूज्ड, मार्क्ड एब्सेंट माइंडेडनेस, टिमिड। उसका दिमाग जैसे लगता है कि पैरालाइज ही हो गया हो, कुछ सोच ही नहीं सकता है। कैनॉट हार्म इवन अ मॉस्किटो, देयर इज सप्रेस्ड क्रुएलिटी। So, in this, anacardium child lives a life of a inner battle, torn between the desires to be perfect and the urge to rebel against the oppression। रिबेल की कई सारी मूवीज आती हैं, रेबेलियन, तो आप देखते होंगे। जो जैसे आपने अभी नेपाल में देखा होगा,
जेन जेड जो होता है वो खुद ही अपने ही सरकार के विरुद्ध हो गए। क्यों ऐसा हो गया? ऐसा क्या कंडीशन डेवलप हो गई थी कि वो हमारे खुद के विरोध में हो गए हैं? तो ये एनाकार्डियम की स्टेट हो गई है, नेपाल की अवस्था। नेक्स्ट case I would like to discuss is the case number 3. A patient, एक 4 साल की बच्ची लास्ट 1 मंथ में मेरे पास में आती है और उसकी मदर की एक ही कंप्लेंट है कि ये 3 दिन से स्कूल ही नहीं गई है, पता नहीं क्या हो गया इसको। जाने में बिल्कुल घबराती है और मना कर देती है, बस तक जाते से ही वो पीछे हो जाती है, नहीं मेरे को नहीं जाना, मुझे आई डोंट वांट टू गो। तो हमने तो सर 3-4 दिन पहले हम सब फैमिली सहित अवतार वो नरसिम्हा की मूवी आती है, मूवी देखने गए थे। तो हमने पूछा कि बेटा क्या देखा उसमें? वो जो नरसिम्हा लाइक टाइप का एक वो पर्सनालिटी रहती है, वो उसको फाड़ देता है, चीर देता है। और क्या देखा? वो जो बैड बॉय रहता है, बैड बॉय को वो किल कर देता है, उसको फाड़ देता है। और तो जब से वो पता नहीं क्या हो गया है कि एक डरी हुई सी रहती है, सहमी हुई सी रहती है और रात को रोती भी है। और क्या करती है? जब मैंने ये सब चीज देखी तो वो मदर और फादर उसके सामने बैठे हुए थे, दोनों के बीच में वो चिपकी हुई सी थी। क्लिंगिंग हमें देखने को मिली। टॉक्स अबाउट मॉन्स्टर एंड बैड मैन कमिंग टू हार्म हिम, screams and hide when he hears sudden loud noise। तो ये सब चीज देखी हमने। और फिर उसके साथ में तो बच्ची काफी डरी हुई थी, सहमी हुई सी थी। इंटेंस फियर एंड टेरर आफ्टर फ्राइटफुल एक्सपीरियंसेस। तो ये सब सिचुएशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? कौन सी मेडिसिन में देखने को मिलती है? कैन एनीबडी टेल मी? यस, दिस वी कैन सी इन द मेडिसिन स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम क्या होती है? तो जैसे ही मैंने उस बच्ची को स्ट्रेमोनियम 200 के 2 ही डोज दिए थे, एक स्टेट डोज दे दिया था एक हाफ एन आवर के बाद में, और नेक्स्ट डे इवनिंग में फ़ोन आता है कि सर अनगा नाम की एक बच्ची है कि हाँ वो तो गई आज स्कूल, और बहुत अच्छा लगा उसको, मतलब वो जाते से कोई कंप्लेंट भी नहीं आई और ऐसा लगा कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो व्हाट वाज द सेंट्रल फीलिंग ऑफ द स्ट्रेमोनियम? अलोन इन अ टेरिफाइंग वाइल्डरनेस। तो उसमें क्या देखा था उसने कि स्ट्रेमोनियम में कि एक ऐसा व्यक्ति जो गलत व्यक्ति को, गलत काम करने वाले व्यक्ति को एक पनिशमेंट दे देता है, एक बहुत ही डरावना सा व्यक्ति। तो स्ट्रेमोनियम में आपने एक थीम देखी होगी। स्ट्रेमोनियम में एक सिम्टम होता है डिल्यूजन सीज स्पेक्टेयर्स घोस्ट स्पिरिट्स ऑन क्लोजिंग आइज। तो उसको जहां पर उसको लग रहा है कि अगर मैं स्कूल गई, अगर मैंने कुछ गलत काम करा तो मुझे पनिशमेंट कौन देगा? टीचर। तो वो टीचर उसके लिए घोस्ट जैसा उसे महसूस होने लग गया, स्कूल जाना ही नहीं मुझे। तो उस सिचुएशन में जैसे ही वो स्कूल जाने का नाम लिया, वो एक पैनिक सिचुएशन में आ गई। कंफ्यूजन, ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, शी डजंट रिकॉग्नाइज एनीवन, और माँ बाप से चिपक जाती है। वही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे वो खुल के बात करती है। तो स्ट्रेमोनियम बच्चा हमेशा आपके क्लिनिक पर आएगा, तो वो चाहे वो मम्मी का या पापा का, किसी एक का दामन तो थाम के रखेगा और दोनों से चिपक के रहेगा। उनके कंधे से
या उनके पीछे छुपा हुआ रहेगा। ठीक है। क्लिंग्स टू द पेरेंट्स और फर्नीचर। अब हम ये थोड़ी देखेंगे फर्नीचर मतलब कोई है, कोई वस्तु के पीछे उसको थाम के रखता है। क्लिंग्स टू द फर्नीचर दैट मीन्स एनी काइंड ऑफ पर्सनालिटी और ऑब्जेक्ट जहां से उसको अपने आप को सेफ महसूस करती हो। ठीक है। सो फियर ऑफ डार्कनेस, सॉलिट्यूड, डेथ एंड एनिमल्स, कैन नॉट स्टे अलोन, wants light and company. Stramonium के बच्चे, उनके pupils dilated when reprimands. Then delirium and hyperactivity. उनमें loquacity आपको ज्यादा देखने को मिलेगी during fever or fright. Sings, raves, imitates animals, and they stuck on one topic. Overly talkative. बहुत खूब बातें करेंगे, ऐसे ये करो वो करो ये करो, वह दिन भर बातें करना। सो ये उनका रेपर्टोरियल अप्रोच है। फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ डॉग्स, वायलेंट, डिलीरियम वायलेंट, स्ट्राइकिंग, किसी को मारना, तोड़ना, फोड़ना, shrieking in sleep, and biting desire to. These are the main theme of the stramonium. Now, infant stage में हम ये देखते हैं, they wants to be touched directly and sleepy but cannot sleep. ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, कैमोमिला देकर उसको चुप करा देते हैं, या बोले यार ये क्या कैमोमिला है, चिड़चिड़ा बच्चा दिख रहा है, कैमोमिला दे दो। मगर स्ट्रेमोनियम इज वेरी रेयरली प्रिस्क्राइब्ड इन आवर pediatric case taking. We can use them very early. So stramonium weaken, the mnemonic of the stramonium is sudden terror runs after warmth. So we can think this straw, sudden violent outburst. T stands for terror of darkness. R stands for restless and aggressiveness. A stands for attack violently. And W stands for wants company. Okay. So I think that is enough for today. There is one more remedy, but time is going to over now. If anybody has some kind of issue or problem, they can message me. You can give your feedback in the chat box, or if any kind of queries, you can also ask. Okay, thank you, Ashay team. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much for the wonderful session. Thank you. So it was very wonderful session. Thank you. If the participants have any other questions, they can comment in the comment box so that sir will be answering. Yeah. So when is our next class? Okay. It will be So we'll have the one more session with sir by the next month. Okay. Okay, thank you. Yeah. Any other questions from the participant regarding the today's session? Excuse me, sir. If we have any doubt regarding this class or any other in our clinic practice, how can we discuss with you? uh, you can take or email us kushalparak@gmail.com. Then we will surely answer you. Or you can text the Ashay team and they can forward me. Yeah, just give us a minute. We will provide the sir Gmail ID so that you guys can be contact. Yeah, just give us a minute. Yeah. Okay, thank you so much. This is my email ID. I am writing in the chat box.
will surely answer you. Dr. Avi, you are from? From JNK. Okay, okay, wonderful. We have many kind of pediatric remedies. Just we have ignored in our practice. Just we have to understand the theme, and wonderful results are seen in this, and cases are very much sure. हमें कुछ ज़्यादा समझना ही नहीं पड़ता है, कुछ दो चार थीम हम समझ लेते हैं तो इजी हो जाता है वो. Okay, Yes, okay. sir. Thank you, Asha team. I think I have to be left. Sure, sir. Soon we'll be looking forward for many more sessions from you, sir. We'll be Okay, glad that today's session is very good, that we have known many things and we have learned how to tackle the like emotional plane on the kids also, and how to tackle in the certain remedies also in that plane. So we'll be looking forward for many more sessions, sir. Thank you all. Thank but you it is all but the it is a participants. Yes, sir. okay, but it is request that don't postpone the such kind of a sessions, so that Definitely, sir. okay, because Sure, sir. yesterday we have around 50 queries said why the session was not there. Oh, So it was uh, very difficult for us to join today. pardon us, sir, due to the technical issue that has been happened yesterday. So it was our fault, sir. So pardon No, us. no, no, no. Yes, sir. It's okay. Uh, It's okay. Next time we will take the good care over this, sir. Yeah, sir. Okay. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you all. Thank you so much. Yeah, We'll be right back with the other session. Yeah. Thank you all. thank you. Thank you.